Hello everyone, welcome to yet another episode of The Execution Show. I'm super thrilled that you're tuned in today, and today we have with us someone really special to us at Zebra Learn, our very first author, Mr. Ashwinder R. Singh. Sir trusted us when we were, 5, 6 books? We had all of it, that is all that we had. So thank you so much, sir. First things first, for trusting us back when we were absolutely starting out from scratch, nothing to show for actually. And I remember that call was like a 10-minute call where we introduced ourselves and sir agreed to, chalo, let's do it. And first things first, I'm extremely glad and grateful for it. Let me quickly introduce sir and let me give you his background. So, sir started as a banker in Citibank and had been a banker for a very long period of time. Then he transitioned into real estate. Within real estate, he was CEO at JLL. He was CEO at Anarock. He was then CEO at Bhartiya Urban, and now he is CEO at BCD. He has held and led teams into execution of very complex projects, be it financial in nature, be it real estate, be it operations in nature. And leading these teams into such competitive industries, it's a pleasure that we get to borrow from your wisdom and learn from your wisdom, sir. So first things first, a big welcome, sir. Thank you so much for taking out time and joining in on this. Thank you for inviting me, Anurag. So today's session, as we always do it for the execution show, we have one topic that we break it down. Today we are going to do something little differently. Today we are going to talk about leadership. How can anyone in the first 10 years of their professional career prepare themselves to become a CXO in their organization or in some other organization? The inputs that go into it, the leadership, the training that goes into it, that is something that we'll be touching upon today. And this is something, the topic today is something that covers every other angle or every other episode that we have been talking about on this show. Whether we learn about LinkedIn, whether we learn about entrepreneurship, all of these will borrow from elements of leadership that we will touch and talk about today in great detail. So I'm super pumped, super excited for the session today. Let's dig deep into it, sir. So, sir, my first question is a very simple one. What is leadership to you? What do you define as leadership? Explain us. What is your view on leadership? See, if I have to simplify this conversation, Anurag, leadership is becoming a machine at self-awareness. Okay. Leadership is about knowing yourself first before you have the ability to lead others. You need to yourself know what you are good at, what you are best at, what you suck at, and what you're very bad at. Because till the time you don't know yourself, the best cannot come out of you. And if the best cannot come out of you, how are you going to inspire? Because leadership is also about inspiring others. What is leadership? You say, he's my leader because you look up to that person. And you look up to that person because that person inspires you. Let's talk about some global leaders. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Abdul Kalam Azad, Atal Bihari Vajpayee. Let's look at Bill Gates. Let's look at Warren Buffett. Why do you look up to them? Because they are very good at what they do and they knew their strengths and they are machines at self-awareness and they kept on doing it. So you said two things. You said one, self-awareness, and second, inspiring others. Now, if I ask, let's say personally, let's say I'm 27 right now. Self-awareness is something that happens when you put yourself, I feel, when I'm put in different situations, oh, this is what I feel, oh, this is what I think. And that is, what according to you is self-awareness for someone professionally? How do they see it and how does one become more self-aware? And after this we'll come to the inspiring angle to things as well. But what exactly is self-awareness? How do you think, and like what is your opinion on that? See, that's why I said you need to be a machine at self-awareness. I did not say you need to know yourself from a spiritual perspective.
So self-awareness can be taken in two things. One is the spiritual aspect of it. The other is the professional aspect of it. That what is my strength? Do I like math? Do I like science? Or I like humanities. I like to read about history. I like to teach, or I like to be an entrepreneur. Do I want to be an employee, or do I want to start something on my own because I don't want to work under anybody? Knowing yourself is self-awareness here, and that is where you have to become a machine at it. For example, you like sports. Now in sports, do you want to take athletics? Do you want to be a cricketer? Do you want to be a hockey player? Why do you want to get into sports? Now you get into sports because your friend is a cricketer, or you have that innate urge to play cricket and then excel in becoming a cricketer. That self-awareness of excelling, that I want to play cricket and I want to be a bowler, it all starts from there. So that machine of self-awareness is that leadership, that whether I need to be a scientist, a doctor. भाई बचपन में हम बोलते थे, बच्चों से पूछते थे, बेटा आप क्या करना चाहते हो? तो जनरली पहले क्या होता था? डॉक्टर, इंजीनियर, जो सुने हुए हैं, टीचर. आज ऐसा क्यों नहीं होता है? आज क्यों बच्चा नहीं बोलता कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है? बिकॉज सेल्फ अवेयरनेस हाई है. सोशल मीडिया से उसको ये पता चल रहा है कि ये 10 तरह की चीज़ें कर सकते हैं, और सडनली उसका इंटरेस्ट उस चीज़ में बैठना शुरू हो जाता है जहां उसे लगता है मेरे को गिटार सीखना है. गिटार सीखने लगता है जब वो, और वो गुनगुनाने लगता है, तो उसे पता चलता है मैं गा सकता हूँ, तो मुझे गाना भी सीखना है. वो गाना सीखता है, उसका टीचर बोलता है तुम अच्छा गा रहे हो, सारे गामा के लिए क्यों नहीं अप्लाई करते? वो सारे गामा में अप्लाई करता है, और वो जर्नी वहाँ से चलनी शुरू हो जाती है. ही और शी हैज़ बिकम अ मशीन इन सेल्फ अवेयरनेस. ऑन द अदर हैंड, एक टिपिकल मिडिल क्लास के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि वो बोलता है भाई गाना गा के पेट नहीं भरेगा. तो तुम गाना गाते रहो, बट उसको हॉबी रखो. अब 10th के एग्जाम आ गए हैं, ये पढ़ लो. तुम क्रिकेट खेलते रहो, बट हॉबी रखो. अब 12th के एग्जाम आ गए हैं, अब अगले 3 महीने तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, तुम ये पढ़ोगे. तो अब हो क्या रहा है कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस है, बट वो काम पे नहीं आ रही है, बिकॉज यू आर नॉट बीइंग अलाउड टू डू व्हाट यू वांट टू डू. टिपिकल मिडिल क्लास में जब सेल्फ अवेयरनेस पढ़ाई की तरफ होती है, देन यू आर अलाउड टू डू व्हाट यू वांट टू डू, बिकॉज उसके अंदर रिस्क कम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज्यादा है, सेफ्टी ज्यादा है. तो माँ बाप बोलते हैं तो आप करो, बिकॉज आपकी सेल्फ अवेयरनेस और जो वो करवाना चाहते हैं वो अलाइन हो रहा है. जहां पर आपकी सेल्फ अवेयरनेस एक्टर बनने की है, सिंगर बनने की है, क्रिकेटर बनने की है, वो अलाइन नहीं हो रही है ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेबिलिटी से और सेफ्टी से, तो वो अलाउ नहीं करते हैं. इसीलिए क्यों 90% क्रिकेटर आज इंडियन टीम में Tier 2, Tier 3 शहर से हैं और बहुत गरीब घरों से आए हैं? ऑप्शन नहीं था शायद दूसरा. उन्होंने क्रिकेट खेला, पढ़ाने का भी ऑप्शन नहीं था, माँ बाप भी बहुत छोटे काम कर रहे थे, वो क्रिकेट खेलते गए, वो अच्छे बनते गए, वो लॉटरी लग गई. कोई मुरादाबाद से है, कोई रांची से है, वो क्रिकेटर खेलते गए, उन्हें अच्छा लगता था, वो सुबह भी प्रैक्टिस करने जाते थे, वो दोपहर को भी जाते थे, शाम को भी जाते थे, उनके माँ बाप उनको नहीं रोकते थे. बट फंडामेंटल क्या था? फंडामेंटल हार्डवर्क का था, पैशन का था, और आप वो कर रहे थे जो आपको अच्छा लगता है. उसमें क्या होता है, व्हाट हैपन्स इज व्हेन यू आर लाइकिंग समथिंग व्हाइल डूइंग इट, हार्ड वर्क is something that comes on its own. When hard work is something that does not come on its own, it becomes hard work. True. Otherwise it is not hard work. Otherwise it's fun. Otherwise it's happening. You have to walk to reach a particular distance. If you like walking, you say, wow, I have to walk 10 kilometers. I'll complete my 10,000 steps. You don't like walking. You're not getting an auto. You're not getting a taxi. You don't have a car. It is hard work for you, despite you being obese.
Every 10 steps is a step. So basically, self-awareness, either Anurag, is about professional self-awareness of figuring out what is it that I like to do. And there are so many opportunities and options that when you are looking at things, when you're looking at social media, when you're looking at books, when you're talking to friends, you suddenly understand that yes, this is what I like. I would want to pursue my career in this, and that's where everything starts. However, when you are trying to pursue your career in something which is not conventional, in the typical scheme of things, especially in the India scheme of things, there are a lot of roadblocks. Like? Now, leadership is about, the second point is, leadership is about last man standing. Self-awareness will tell you what you want to do, but leadership is about last man standing. You will get 5 knocks, you will not do it, but you say, I will do it. You will get 20 obstacles, which will force you not to become a singer, but you will say, I have to become a singer. You will have 50 people laughing at you and saying, he is going to become an actor, but you will be the last man standing and saying 50, 100 obstacles. I will become an actor. Until the time I don't become an actor, I am going to be the last man standing. Nobody can make me fall. So self-awareness tells you what you like, but your grit. Now, how do you explain grit? Grit is last man standing. That as many of punches life might give you, I will fall down, I will get up, and till the time I achieve what I wanted to achieve, I am not going to let it go. And that is what is called last man standing. So basically what आप जो कह रहे हैं sir, what you've been saying, I see 2 things first. Self-awareness and grit. And both of them are personal traits. This has nothing to do with me being around 20 people or 50 people or leading a team of 100 people. It is first things first, me managing me. Because grit is something which is an external thing affecting you and you overcoming it. Self-awareness is exactly the same thing. So when I ask, so my question then changes, rather than how do you become a reader or leader, my question goes, who becomes a leader? आपके हिसाब से क्या 5 या 6 या 7 या whatever ट्रेट्स होते हैं, चीज़ें होती है जो शायद लोगों को, और हम इसके ऊपर और डिटेल में आएंगे कि कैसे उसके ऊपर काम करना चाहिए, बट उससे पहले क्या चीज़ें हैं जो एक लीडर को पहले एक लीडर बनने लायक बनाता है, या एक इंसान की वो तैयारी में वो एक राजा की जो तैयारी बनती है, जो वो ट्रेनिंग में जाता है, जो एक हमने अगर मूवी देखी थी एक आई कीप मिसिंग द नेम, उसमें कटप्पा जिस मूवी में थे, उसमें उनकी ट्रेनिंग होती है बकायदा। तो वो जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग पे भी हम आएंगे, बट वो 5 या 6 चीजें क्या होती है जो आपके हिसाब से एक लीडर को लीडर बनने लायक बनाती है? ओह, देखो इसके अंदर क्या है ना, अब ये तीसरी चीज आ रही है। हमने पहले बोला सेल्फ अवेयरनेस, बी अ मशीन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। कौन हूं मैं कौन हूं, मुझे क्या अच्छा लगता है। इमेजिन विराट कोहली ट्राइंग टू बिकम अ फुटबॉलर। हाँ, और इमेजिन विराट कोहली ट्राइंग टू प्ले लाइक सहवाग, और इमेजिन सहवाग ट्राइंग टू प्ले लाइक VVS Lakshman. Now, how do you take these names in one breath? They have such different styles. तो सेल्फ अवेयरनेस, फिर हमने बोला लास्ट मैन स्टैंडिंग ग्रिट, फिर आपने बोला ये पर्सनल ट्रेट है। एक्चुअली लीडरशिप है ही बड़ी पर्सनल चीज। आपने बोला राजा और प्रजा, लीडरशिप इज अबाउट पीपल। इसमें ना तो साइंस आई, ना टेक्नोलॉजी आई, ना मैथमेटिक्स आया, ना पढ़ाई आई, ना रियाज आया, ना इसमें और कुछ आया। इसमें राजा आई, प्रजा आई, ट्रेनिंग आई, लोग आए। और लोगों में सबसे कमाल की चीज क्या है इंसान में? एक पेड़ क्यों नहीं लीडर बन सकता, एक एनिमल क्यों नहीं लीडर बन सकता? क्योंकि हमारे पास दिमाग है। अब दिमाग इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड, इट्स गुड एंड बैड, राइट?
सो तीसरी चीज है, टू बिकम अ लीडर you have to have the ability to make the other your MVP. Others have to be the most important person. If you want the praja to make you the king, a good king always is thinking about the praja. ये मैंने सोचा नहीं था. A good king is not thinking about himself. Indirectly, yes. Because indirectly, everybody is selfish. Indirectly, हमारे को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? मरने से. क्यों लगता है? क्योंकि भगवान ने हमारे लिए हमारे अंदर प्यार पैदा किया हुआ है. नहीं तो मरने से क्यों डर लगना चाहिए? तो आपको लीडर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. आपको अपने आप से प्यार नहीं करना है, बिकॉज वो तो लॉजिकल है. आजकल मैं ये देखता रहता हूं, सेल्फ लव एंड ऑल दैट. आई डोंट बिलीव, दिस इज ऑल बुलशिट, बिकॉज एवरीबडी लव्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ. द प्रॉब्लम इज पीपल डोंट लव अदर्स. एंड बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेलियर्स, सोशल मीडिया के अंदर उन फेलियर्स को एड्रेस करने के लिए, बिकॉज अदर्स आर नॉट लविंग यू, उनका दिमाग और ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि प्लीज लव योरसेल्फ, प्लीज लव योरसेल्फ. बिकॉज द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैज फिगर्ड आउट दैट नोबडी इज लविंग एनीवन. तो अब उसको कैसे बताएं? वो डिप्रेशन में है, तो उसको बोलते हैं भाई यू प्लीज लव योरसेल्फ. लीडरशिप इज अबाउट लविंग अदर्स. Leadership is about making everybody else more important than you. And that is what is called adding value in management parlance. जब आप पढ़ लिख जाते हो, आप स्टार्टअप करते हो, आप इन्वेस्टर के पास जाते हो, वो बोलते हो what problem are you solving? Whose problem are you solving? People. Swiggy is solving a problem of ordering food. People. Because people are consumers. Consumers are clients. Clients make you leaders. Clients make Microsoft leader. Clients make Zomato leader. Clients make Zebra Learn a leader in publishing. And we get so, unfortunately, because we don't know ourselves, we are thinking about publishing. We are thinking about quality of publishing. We are thinking about how the book looks, how the design is. And most importantly, we are not thinking about who my reader is. And the moment you look at the leader, you figure out Zebra Learn is thinking more about who the leader is and less about what the product is. And that is when they become a product company. Zebra Learn is a product company, it is not a tech company. And you've raised funding, and the world is saying funding is only for technology companies. Where is technology in this? There is no technology in this. You are solving a problem for someone, and that is a people, that is a person. Leadership is about thinking about the praja. Leadership is about becoming a go-giver, not a go-getter. आप एमबीए करने जाते हो, आपको बताते हैं बी अ गो गेटर, बी अ गो गेटर, बी अ गो गेटर. दैट इज व्हाई 99.9% ऑफ एमबीएस डोंट बिकम अ सीईओ. दे डोंट बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. कहां गए वो सारे जो हार्वर्ड से पास आउट हुए हैं, स्टैनफोर्ड से पास आउट हुए हैं, मकिंजी में थे, बीसीजी में थे, आईएम अहमदाबाद में थे, आईएम बैंगलोर में थे. लाखों लोग पास आउट हुए हैं, वो सारे क्यों नहीं बने सीईओस? और बने तो सक्सेसफुल सीईओस क्यों नहीं बने? सीईओ बनना तो बहुत आसान है, बट एवरेज लाइफ क्या है सीईओ की? 2 साल. 10 साल से ऊपर कितने सीईओज हैं? 10 साल से ऊपर वो सीईओज हैं जिनकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत हाई थी कि मेरे को ये करना है, और मैं जब तक सक्सेसफुल नहीं होऊंगा मैं करता रहूंगा. आई विल बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग. तो जब 50 गिर गए, जो 51 नंबर था उसको सीईओ बना दिया कि यार ये तो प्रेशर ही नहीं ले पाया, इसको सीईओ बना देंगे. कल प्रॉब्लम हो जाएगी, कोविड आ जाएगा, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये तो भाग जाएगा. कल हमारे पास फंडिंग नहीं होगी, ये तो भाग जाएगा. और तीसरी बात जो मैंने अभी आपको बताई, यू हैव टू बी अ गो गिवर. यू हैव टू मेक अदर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इफ यू वांट destiny to make you the most important person, because becoming
the best in your field. Now this is something which is very fluid. It is like भगवान है या नहीं है. भाई अगर नहीं है तो इतने मंदिर क्यों हैं? अब आजकल की जनरेशन बोलेगी ये तो बड़ी फ्लूइड बात है. फिर आजकल की जनरेशन बोलो तो मंदिर क्यों जाते हो? मंदिर तो सब जाते हैं, गुरुद्वारे तो सब जाते हैं. फिर ये क्यों बोलते हैं यार इस बात में तो कोई बात नहीं आ रही, ये तो प्रैक्टिकल बात नहीं है, ये तो बड़ी थ्योरेटिकल बात लग रही है. भाई जितने लोगों को थ्योरेटिकल बात लग रही है, तुम अगर 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, तो पहले तो मुझे आके प्रूव कर दो भगवान है और इसीलिए तुम उस मंदिर में जाते हो जिसमें वहां तो है ही है. और इतने भगवान है, 33 लाख करोड़ भगवान है, इसीलिए इतने मंदिर है. तो don't, I would want to tell this 28, 30-year-old segment, PhD in mathematics is philosophy in mathematics. एंड में मैथमेटिक्स में भी फिलॉसफी ही पढ़नी पड़ती है. नहीं तो मैथमेटिक्स में पीएचडी नहीं होनी चाहिए. पीएच से क्या है? फिलॉसफी. साइंस के सब्जेक्ट में फिलॉसफी नहीं होनी चाहिए. So leadership is a philosophy. Leadership is a way you look at life. Leadership is a way you look at yourself. Because the way you look at yourself, you look at others. आप चोर हो, आपको दूसरा चोर दिखता है. आप ईमानदार हो, आपको दूसरा ईमानदार दिखता है. आप खुद को ट्रस्ट करते हो, आप दूसरों को ट्रस्ट करते हो. आप खुद को ट्रस्ट नहीं करते हो, आप दूसरों को ट्रस्ट नहीं करते हो. आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ धोखा करते हो, आपको लगता है आपकी गर्लफ्रेंड भी किसी और को मिल रही है. It is all a reflection of what is inside. That is why there are two self-awarenesses. One is how you look at yourself, and one is how you know yourself. In terms of your strengths, your abilities, your capabilities. A good leader, Anurag, always puts capability before capital. अनुराग और राधिका के कैपेबिलिटी नहीं है तो मैं जितना मर्जी कैपिटल दे दूं, उस कैपिटल का कोई फायदा ही नहीं है. बिकॉज वो कैपिटल कहां जा रहा है समझ नहीं आ रहा है. ना प्रॉब्लम पता है, ना सोल्यूशन पता है, ना टारगेट सेगमेंट पता है. हम पब्लिशर है, इसीलिए इतने पब्लिशर है, उनको फंडिंग नहीं मिली. ज़ेबरा लर्न को फंडिंग मिली. कैपेबिलिटी को फंडिंग मिलती है, और कैपेबिलिटी आपको लीडर बनाती है. आप कैपेबल हो, आप धोनी हो. आप कैपेबल नहीं हो, आप कामली हो. खेलने तो दोनों गए थे क्रिकेट. अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, तेंदुलकर बहुत अच्छा प्लेयर है बट बहुत ही पुअर लीडर है. बिकॉज बड़ा कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज पीपल लव तेंदुलकर बिकॉज ऑफ हिज कैपेबिलिटी. बट टेल मी हाउ मेनी मैचेस ही मेड अस विन. Why did he not play well when he was a leader? Because he could not multitask. So चौथी चीज है ability to multitask. ये जो आजकल आया ना कि कोर कॉम्पिटेंसी बहुत अच्छी बात है बॉस. आप मल्टीटास्कर नहीं हो तो आप लीडर नहीं बन सकते हो. Why is Narendra Modi such a great leader? Because he's a great multitasker. Why is mother more important than father? Multitasking. मैनेजमेंट गुरु बोल रहे हैं मल्टीटास्किंग मत करो, कोर कॉम्पिटेंस करो. तो भाई मां का कौन है मैनेजमेंट गुरु? हु टीचेस मदर टू बी अ मदर? बच्चे को कब पढ़ाना है, कब लिखाना है, कब खिलाना है, कब नहलाना है, कब कपड़े बदलने हैं, कब कपड़े धोने हैं, घर वाले को खाना कब देना है, सुबह कितने बजे उठना है, रात को कितने बजे सोना है, घर की सफाई कब करनी है, बाहर की ग्रोसरी कब करनी है, दोस्तों को कब मिलने जाना है, अपने माँ बाप से कब बात करनी है. एंड इन द एंड नॉट लुकिंग फॉर क्रेडिट. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अ गुड लीडर is not looking for credit. A good leader is only focusing on input. Like a mother, like a parent. Focus. How many parents ask a 4-year-old child, बेटा मैंने तेरे लिए कितना कुछ किया है, I need credit. How many times our parents have said, I have done so much for you, please give me credit. A good leader is a one. आप अच्छा लीडर कब बनते हो? जब आप क्रेडिट नहीं लेते.
और वो अंदर से ही आना चाहिए. जस्ट बिकॉज कोई चुपचाप बैठा है उसका मतलब ये नहीं है उसको क्रेडिट नहीं चाहिए. नहीं तो जितने चुपचाप सो कॉल्ड हम्बल लोग हैं सब लीडर बन गए होते हैं ना. नहीं बने लीडर बिकॉज ये चुपचाप तो थे, हम्बल भी थे, पर अंदर से बहुत क्रेडिट चाहिए था. और आप कब उस सिचुएशन में आते हो अनुराग, बिकॉज हम एक्शनेबल की बात कर रहे हैं कि आप क्रेडिट नहीं लोगे, बिकॉज आई एम रीडिंग योर माइंड. आप कैसे उस सिचुएशन में आओ कि आप बोलो मैं क्रेडिट नहीं लूंगा, जब आप ऑथेंटिक हो जाओगे. सेल्फ अश्योर्ड, खुद को खुद ही कि मैं इनफ हूं. बॉस मेरे को वैलिडेशन नहीं चाहिए. मेरा एक दोस्त है, मैं उसको मिला, मैंने उसको बोला यार वो समझ जाएगा, बट मैंने उसको बोला यार मुझे ये भी नहीं ठीक लगता, 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 ये भी नहीं ठीक लगता. उसने बोला तुझे मेरा कुछ भी ठीक नहीं लगता. तो मुझे लगा इसको बुरा लग गया. तो मैंने बोला नहीं इतना ठीक है, ये इतना ठीक है, ये इतना ठीक है. मैं कमरे में गया, मैं बड़ा नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूं लीडरशिप के. मैं कमरे में गया, मैंने बोला यार अश्विंदर तू पलट गया एकदम. तो मेरे को अश्विंदर ने बोला कि अश्विंदर मैं पलटा नहीं, तू पलटा नहीं, तेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है, तू अडेप्ट कर गया. तो जो अच्छा लीडर होता है ना, नेक्स्ट लेवल है अडेप्टेबिलिटी का. वो अडेप्ट कर जाता है बिकॉज वो बोलता है कि यार ब्लैक एंड व्हाइट तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यों ब्लैक एंड व्हाइट में डाल रहा हूं कि ये भी नहीं अच्छा, 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 ये भी नहीं अच्छा. यार इनकी जो अच्छी चीजें हैं शायद मैं वो नहीं देख रहा हूं, जो इनकी खराब चीजें हैं मैं वो देख रहा हूं, तो अच्छी चीजें भी देख लेता हूं. वो कहां से आया? माई एबिलिटी टू अडेप्ट. दैट इज वाई पीपल से आई कैन बी अ लीडर. तो इस पे तो मोस्ट रिसर्च सब्जेक्ट है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इसीलिए बहुत कम लोग लीडरशिप के ऊपर बात कर सकते हैं, बिकॉज इतने एरियाज हैं जो जब मिलते हैं तो आप लीडर बनते हो. लीडरशिप इज खिचड़ी. Now khichdi is not served in 5-star hotels. How many times have you seen people eating khichdi in a 5-star hotel? No one will. No one will. Why? They'll have prawns, they'll have Italian, they'll have dim sum, they'll have sushi, they'll have all this. Because leadership आप खरीद नहीं सकते, लीडर आप बना सकते हो. खिचड़ी बनती है घर में, कंफर्ट फूड, दाल चावल घी नमक मिर्च हल्दी, 3 सीटी दी, खिचड़ी बनी, साथ में दही रखा, खिचड़ी खाई, पेट के लिए भी अच्छी. आप सो गए बिकॉज आपने वो किया जो आपको पसंद आ रहा था. 5-स्टार में आपने वो किया जो लोगों को पसंद आ रहा था. How many times do we see social media reels? I am having khichdi. The whole country only eats khichdi. Why is khichdi not there on social media? Please tell me. Why is the whole country, Gujarat, Rajasthan, South eats curd rice, North eats khichdi. Where is khichdi? Because khichdi is too simple. Khichdi is not glamorous. Leadership is not about glamour. That's how it comes across. Leadership comes across as glamour. Leadership is not about glamour. Leadership is about being all of it that we discussed. Coming together, because self-awareness might bring arrogance. Adaptability will bring humility. So, एक ingredient of self-awareness might bring self-respect. But simplicity will bring humility. So, when everything comes together, you become
योर जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग अ CXO इज देयर. अब उसके बीच में कहीं ग्रिट आ जाएगी, कहीं अडेप्टेबिलिटी आ जाएगी, कहीं सिंप्लिसिटी आ जाएगी, और ये सब जब कहीं ऑथेंटिसिटी आ जाएगी, और ये सब जब इकट्ठा हो जाता है तो ये बन जाती है इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी क्या है? अपने आप से सच बोलो. जब आप ऑथेंटिक हो, आपके अंदर इंटीग्रिटी है. जब आप सेल्फ अवेयर हो, आपके अंदर इंटीग्रिटी है, बिकॉज आप बनावटी कुछ नहीं कर रहे हो. सी, एनीथिंग दैट इज फेक comes in the way of integrity. comes in the way of integrity. जितने रिश्ते टूटते हैं वो झूठ के कारण टूटते हैं, सच के कारण नहीं टूटते हैं. सो व्हेन यू आर फेक, यू डोंट हैव इंटेग्रिटी. व्हेन यू डोंट हैव इंटेग्रिटी, उस राजा को कौन सी प्रजा फॉलो करेगी? बात तो प्रजा की है, क्योंकि राजा बनने के लिए प्रजा चाहिए, और प्रजा म्यूटनी कभी भी कर सकती है भाई. ये जो पब्लिक है, इसको ऊपर भी पहुंचाना आता है, नीचे भी पहुंचाना आता है. रणवीर अलाहाबादिया, इसी पब्लिक ने ऊपर पहुंचाया. एरोगेंस ने क्या किया? उसको ये नहीं बताया कि भाई ध्यान से बोलो, लोग तुम्हें सुन रहे हैं, तुम्हारे मन में जो भी आ रहा है तुम बोल रहे हो. तुमने क्या किया? तुमने प्रजा को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया. सक्सेस दिमाग पे चढ़ गई, मतलब ह्यूमिलिटी खत्म हो गई. ह्यूमिलिटी का इंग्रेडिएंट क्या है? अडेप्टेबिलिटी. ही वॉज नॉट अडेप्टेबल. लीडरशिप is about playing long, not just playing well. रतन टाटा ने बोला था, द ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट इंडियंस एवर बॉर्न, के लोहे को उसका रस्ट ही खत्म करता है. रणवीर को रणवीर ने खत्म किया. और ऐसे कितने रणवीर जानते हैं हम. आज अश्विंदर को लगता है वो बहुत बड़ा लीडर है. एक गलती, बिकॉज पीपल आर वेटिंग टू सी यू डाउन. दिस वर्ल्ड इज नॉट अ इजी प्लेस टू लिव. आपके साथ ही बैठा हुआ आदमी कह रहा है, यार ये नीचे कब जाएगा तो मजा आएगा, बिकॉज मैं तो ऊपर जा नहीं पाया, ये तो नीचे आए, कहीं तो बराबरी हो. सो यू हैव टू बी हम्बल. And when integrity is high, humility is not to be learnt. It comes. शादी होती है तो फैमिली देखते हैं, सिर्फ लड़की या लड़का नहीं देखते. इसीलिए ये पैकेज है. जब पैकेज के अंदर आप इंटेग्रिटी आ जाती है तो जनरली राहुल बजाज, आनंद महिंद्रा, गोदरेज, all of them, why are they so respected? Because they have been very, very, very consistent. And at one level, they haven't been arrogant. Yeah. At the other level, they have added value. At the other level, they have been adaptable. At the other level, they have not been complacent. महिंद्रा ने कहां से शुरू किया, कैसे स्कॉर्पियो का डिजाइन चेंज हुआ, कैसे वो गोयनका को लेके आए, कैसे महिंद्रा का लोगो चेंज हुआ, कैसे लग्जरी एसयूवी मार्केट के अंदर 40% शेयर है आज की डेट में, और कैसे वो ईवीज के अंदर आ गए हैं, कैसे उन्होंने एक फ्लाइट के नाम के ऊपर ईवी रख दिया है. दे आर अडेप्टिंग, 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 अडेप्टिंग. एंड वेयर डज अडेप्टेबिलिटी कम फ्रॉम? Humility and integrity. One more thing. When Self-awareness. no, when you are not happy with yourself and there is room for improvement. तो सर वी अंडरस्टूड, हमने बात की what makes a leader and I think we touched that in great detail, and हमने ज़्यादातर सॉफ्ट स्किल्स की बात की. और सॉफ्ट स्किल्स आर मोर हार्डर देन हार्ड स्किल्स टू अक्वायर, बिकॉज एक इनेट एक पर्सनालिटी होती है, उसको आपको वायर करना पड़ता है. सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज मेकिंग ऑफ अ लीडर? एक डायरेक्शनल हम समझ के कि कहाँ हमारा एक डायरेक्शन है, हम कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, उस डायरेक्शन में पहुँचने का तरीका आपके हिसाब से फॉर समवन लेट्स से 28, 27, 30 उनके लिए क्या है, बोथ प्रोफेशनली एंड आई थिंक मेजरली प्रोफेशनली. आउटसाइड प्रोफेशन भी ये चीज़ें आपने जो कहा सब काम करती ही है, तो प्रोफेशनली वो बढ़ने का तरीका क्या है आपके हिसाब से?
देखो, हार्ड स्किल की बात इसलिए कम होती है अनुराग, बिकॉज सपोज करो अब आप एक डेवलपर के पास काम कर रहे हो, या आप सैप में काम कर रहे हो, आप HDFC बैंक में काम कर रहे हो। अब आपके पास वो स्किल सेट या MBA की डिग्री या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इसलिए तो आप अंदर गए हो। तो अब हार्ड स्किल की क्या बात करें? हार्ड स्किल तो है ही है ना। नहीं होगा तो बात ही खत्म, बैट पकड़ने ही नहीं आता तो हाँ, तो मतलब क्रिकेट हार्ड स्किल की बात आप लीडरशिप में इसलिए नहीं करते बिकॉज आप गूगल ज्वाइन कर गए हो तो आपके तो 10 राउंड ऑफ इंटरव्यूज हुए हैं हार्ड स्किल के ऊपर। सॉफ्ट स्किल पे जो हुए तो आप हार्ड स्किल की क्या बात करोगे? अब आपको लीडर विद इन गूगल बनना है, अब आपको लीडर विद इन फेसबुक बनना है, विद इन एनवीडिया बनना है। तो आप एनवीडिया के अंदर गए और अब मैं बोलूँ इसको टेक्नोलॉजी आती है कि नहीं आती है, आपको टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आनी चाहिए, आप एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियर होने चाहिए हो, आपको MIT जाना चाहिए था, आपको आईवी लीग से MBA करनी चाहिए थी। हार्ड स्किल की कभी बात हो ही नहीं सकती बिकॉज आपका जो सेट है उसके अंदर ये सब ब्रैकेट के बाहर है। सो ये जो यंगर जनरेशन है, अब इनको ये बोलो कि जी अब आपको एक अच्छा इंजीनियर होना चाहिए या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए गूगल में जाने के लिए, यार वो तो हाइजीन है, सुबह उठ के ब्रश करना है, वो हाइजीन है। अब बोले जी इसमें लड़का बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसमें, ये ना रोज सुबह उठ के ब्रश करता है, करना ही है। बोलेगा नहीं नहीं ये तो इससे भी अच्छा है सर, आपने कमाल कर दी, ये नहाता भी रोज है। हार्ड स्किल इसीलिए जो होता है बहुत कम डिस्कस्ड होता है, ट्रू। बिकॉज हार्ड स्किल नहीं है तो आप उस सबसेट में नहीं हो। अब आप एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में हो तो आपको पता है यार SEO क्या होता है, सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है, नेटिव ऐड क्या होता है, मेरे जैसे को भी पता है कि इंस्टाग्राम में क्या होगा, फेसबुक में क्या होगा। वो तो हार्ड स्किल है। आउटपुट क्या आएगा वो सॉफ्ट स्किल है कि मैं 8 बजे ऐड शुरू करूं, कि मैं पोस्ट रात को 6 बजे करूं, मैं इसकी बीटा टेस्टिंग कैसे करूं, और मैं कितना पैसा फेसबुक में लगाऊं, कितना गूगल में लगाऊं, कितना इंस्टा में लगाऊं, कितना किसी और डिजिटल मीडिया में लगाऊं, व्हाट्सएप पे जाऊं ना जाऊं, कॉलिंग करूं नहीं करूं। दैट इज स्ट्रैटेजी। दैट इज वाई स्ट्रैटेजी इज पेड मोर देन ऑपरेशंस। Product and strategy are at the same level because you're working on the product simultaneously and you're working on the strategy to propel the product and to get into a market, acquire market share. But what are you acquiring market share with? By selling a product. Both have to be good. Operations, आपको इंसेंटिव नहीं मिलता ऑपरेशंस के लिए, आपको कंप्लायंस टीम में रहने के लिए इंसेंटिव नहीं मिलता है बिकॉज कंप्लायंस इज हाइजीन। आपने कभी सुना है अरे इस कंपनी की कंप्लायंस इस कंपनी से ये कंप्लायंस ज़्यादा अच्छी है? आपने कंप्लायंस का कभी अवार्ड सुना है? यार कंप्लायंस तो हाइजीन है। कोलेस्ट्रॉल एक लेवल पर है, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में, इसके लिए आपको अवार्ड नहीं मिलेगा। आपका कोलेस्ट्रॉल आउट ऑफ कंट्रोल है, इसके लिए आपको दवाई मिलेगी। कंप्लायंस सो प्लीज समझो, आप लोग एक चीज नहीं समझ पाते हो, आप लोग इन योर क्वेस्ट टू बिकम प्रैक्टिकल, यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स। अब दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस न्यू जनरेशन, दिस 26 to 35, in your quest to become over practical, you are focusing more on operations and less on strategy. So what is the hard part of becoming a leader? You have to own up failures. You have to stand up and say, I am the person who did the mistake. It is my failure. You have to own up your failure. You have to own up your team's failure. अब मैं इसमें प्रोडक्ट कहाँ से ले आऊं? बात हम लीडरशिप की कर रहे हैं, हम ममता की बात कर रहे हैं, मां की बात नहीं कर रहे हैं। लीडरशिप इज ममता। मां इज अ लेडी, अ गर्ल हु बिकेम अ मदर, गॉट मैरिड, बिकेम अ मदर। ममता सबकी सेम है भाई, मां अलग अलग है। समझो इस बात को। A good leader is a good leader is a good leader, whether in technology, whether in banking, whether in cricket, whether in politics.
A bad leader is a bad leader. And let me also tell you, just because somebody has become a CEO does not mean he's a good leader. There are many entrepreneurs and businessmen who are born in rich families. They become entrepreneurs, they become leaders, they become CEOs. That means they are good leaders? No. They are in a position that was thrusted on them. And within that, yes, they become leaders. Sanjeev Bajaj, Rajiv Bajaj, son of Rahul Bajaj, are fantastic leaders. Because they grew the company multi-fold. And then we have a business house where one brother grew the company multi-folds. The other brother got his part of the company go down multi-folds. Both are CEOs. So CEO is not just because you are a CEO or a MD or so-called you are a leader. So number one, let's come back to brass tacks. You need to own up failures. The tough part of being a leader. Second part of being the leader, he eats the last. पहले आप सबको खिलाओगे, सबको जो उनका ड्यू है वो मिलेगा, फिर वो आपके पास आएगा. He will have to have that patience of eating the last. Number 3, he will have to have the courage to get disliked. Because he will have to say certain things which are not popular. Because a good leader, it is not about a popularity contest. It is about driving value for the company, for the team. And you have to balance the company and the team. You cannot only look at the team and not look at Zebralearn. You cannot look at Zebralearn and not look at the team. Right? His ability to take feedback is the tough part of a leader. बहुत मुश्किल है किसी सीनियर लीडर को जाके बोलना आप गलत हो, और उसके लिए कितना वो अडेप्टेबल है कि वो उसको ले जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, और वो बोले हाँ यार यहाँ मैं गलत हूँ, मेरे को ये सुन लेना चाहिए, नहीं तो आगे जाके और गलती हो जाएगी और शायद मैं लीडर रहूँ ही ना, शायद ये पोजीशन रहे ही ना. सो ये 3-4 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, which are the tough part of being a leader, where you have to own up failures. You are a human being. You have to look at that you will have to eat the last. अगर कश्ती डूब रही है, आप सबसे लास्ट उतरोगे उस कश्ती में से. और अगर कश्ती बहुत बढ़िया चल रही है तो सबसे पहले प्रसाद सबको बटेगा, उसके बाद आपको मिलेगा और मिलेगा ज्यादा, बट उसके लिए पेशेंस रखनी पड़ेगी. सो यू नो लीडरशिप कई बारी बहुत लॉफ्टी चीजें लगती हैं, बिकॉज लॉफ्टी लोग ही लीडर बनते हैं. और आप जैसे बोल रहे थे, अगर आप में एम्बिशन ही नहीं है तो आप लीडर नहीं बन सकते. और एम्बिशन के लिए बड़ा सोचना पड़ता है, और बड़ा सोचने के लिए आपको लॉफ्टी होना पड़ता है. यू हैव टू ड्रीम सो बिग कि एक बारी तो आपको भी लगे यार ये कभी हो ही नहीं सकता. तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये ऑपरेशंस के बाहर है. ये चीजें हैं विजन की, ये चीजें हैं मिशन की, ये चीजें हैं, हम बोलते हैं इंडिया हैज टू बिकम नेट जीरो इन 47 ईयर्स. 4 ईयर्स क्यों नहीं बोलते, 5 ईयर्स क्यों नहीं बोलते? अब हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं 47 ईयर्स में होगा. प्राइम मिनिस्टर पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, बट वो बोलते हैं. Leadership is about creating a legacy. And what is legacy? Which is left after you are not there. That is the tough part of being a leader. Last but not the least, you should have the courage कि लोग जब आपके ऊपर हंसे तो आपको ज्यादा दुख तकलीफ ना हो. Because जो भी आदमी जिसने लाइफ में कुछ किया है उसके ऊपर कभी ना कभी तो लोग हंसे ही हैं. और लोग तब भी हंसते हैं जब आप रिस्क लेते हो. मैं 12 साल से सीईओ की नौकरी कर रहा हूं. मे बी आई एम अमंग्स दी लॉन्गर सर्विंग सीईओज इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री. मैं सीईओ था भारतीय का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड टाउनशिप 150 एकड़, 5 मिलियन मैंने लॉन्च किया, 12-13 मिलियन रेजिडेंशियल में मैनेज करता था, सबसे सेलिब्रेटेड टाउनशिप है. मेरे को गाना गाने का दिल किया, मैंने गाना गाया, सारे गानों को पसंद आ गया. मैंने अपने दोस्त को बोला यार वो आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग, सारे गामा वॉन्ट्स टू डू अ सॉन्ग. कहता बहुत बड़ा रिस्क है, तू पागल है, तू सीईओ है,
हर आदमी ने मुझे बोला बहुत बड़ा रिस्क है। तो मैंने बोला यार मेरी तो एक ही लाइफ है, अब मैं सीईओ हूं तो इसका मतलब मैं गाना नहीं गा सकता, और मैं गाना अच्छा गा रहा हूं तभी सारेगामा वांट्स टू डू अ सॉन्ग। अब जितने हार्ड नोज सीईओ हैं, आईआईटी, आईआईएम अहमदाबाद, हार्वर्ड, करोड़पति, अरबोंपति, जो हमारे को पता है, हमारे बहुत बड़े स्टार्टअप के आदमी हैं जो अब स्टार्टअप में नहीं रहे, जिनको बोला गया कि वो अनएथिकल थे, जिन्होंने बड़े महंगे महंगे घर खरीदे पेमेंट कंपनी के अंदर, उनको भी स्टार बना के रखा हुआ है, वो सब आईआईटीएन है, उनको गाना गा रहा है सीईओ, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। So there was a probability that people could have laughed at me, and there is a probability some would have laughed. But पहले एक वीडियो निकाला सारेगामा ने, फिर 2 निकाले, फिर 3 निकाले, Spotify ने मुझे वेरीफाइड आर्टिस्ट कर दिया। वही लोग जो लाफ कर रहे थे उन्होंने बोला अरे यार अश्विंदर जी आपका गाना सुना, आप तो गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, आप इतना टाइम कैसे निकाल लेते हैं, आप किताब भी लिख रहे हैं, आप सीईओ भी हैं, आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, आप गाना भी गा रहे हैं, आपके पास इतना टाइम कैसे मिलता है, हम तो ये काम करते हैं इसी में टाइम नहीं मिलता है। तो शायद कुछ लोग हंसते होंगे शायद ये काम ही नहीं करता है। तो अब मैं अपने आप को देखूं कि मैं सारा दिन ये सोचूं कि यार ये ना अनुराग सोच रहा है कि मैं तो शायद काम ही नहीं करता हूं यार, मैं तो यही सब करता रहता हूं, मैं तो यार लिंक्डइन ही लिखता रहता हूं। अब वो दूसरा बेचारा लिंक्डइन लिख रहा है, उसका कोई लिंक्डइन पढ़ नहीं रहा है तो उसको और बुरा लग रहा है। लीडरशिप इज अबाउट हैविंग करेज, हैविंग फियरलेसनेस इन एक्शन, नॉट इन टॉक्स। तो जो हम लॉफ्टी बातें कर रहे हैं ना, वो बातें हैं जब तक आप एग्जीक्यूट ना करो। मेरे को क्या हक है लीडरशिप पे बात करने का जब मैं खुद ही रिस्क नहीं ले रहा हूं। यहां एक्शन आता है, बिकॉज एक्शन विल ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कितने सीईओज हैं जिन्होंने किताब भी लिखी, जिनकी किताब शार्क टैंक पे भी आई, जिनका पब्लिशर भी शार्क टैंक पे आया, जिसने गाना भी गाया, जो एक पब्लिक कीनोट स्पीकर भी है, जो एक ऑथर भी है, जो एक बैंकर भी है, जो रियल एस्टेट के अंदर भी है, और रियल एस्टेट के अंदर भी उसने काफी काम किया है। अब वो तो करने से ही होगा, वो तो करने से ही होगा। बहुत बड़ा रिस्क है। बहुत लोग हंसे मेरे ऊपर, अब नहीं हंस रहे, पता नहीं क्यों नहीं हंस रहे। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं हंस रहे। बिकॉज I was the last man standing. मैं बेसुरा नहीं था, वरना कॉन्वर्सेशन नहीं आता। मैंने YouTube पे गाना नहीं निकाला, सारेगामा ने मेरा गाना निकाला। मैंने अपने आप गाना गा के नहीं डाल दिया Instagram पे, अपनी रील्स नहीं बनाई मैंने। Spotify ने मेरा गाना डाला, मुझे वेरीफाई भी कर दिया एज एन आर्टिस्ट। So it is a package, and then I took it till the end. So it is very tough to be a long-term leader. Anurag, a flash in the pan. ज्यादातर जितने चाइल्ड आर्टिस्ट हुए बॉलीवुड में वो बड़े होकर आर्टिस्ट नहीं बने, बहुत जल्दी एक्सपोज हो गए। Leadership is also about timing. Leadership is also about patience. ऐसा नहीं है वो लड़की सुंदर नहीं थी और वो एक्ट्रेस नहीं बन सकती थी, जल्दी एक्सपोज हो गए। लोगों ने प्री कंसीव नोशन ले लिया, ये तो चाइल्ड आर्टिस्ट थी, अब इसको मेन आर्टिस्ट में हम नहीं ले सकते। तो सही समय पर डिसीजन लेना, एक्सपीरियंस के साथ चलना, अपने आप को देखो, विजन एक और चीज़ है और अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना एक और चीज़ है। अब मैं विजन ये ले लूं कि मेरे को इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बन जाना चाहिए एट द एज ऑफ 50, दैट इज नॉट विजन। then there is something wrong with your overall thought process. So leadership is very tough because it is about owning up your mistakes. It is about taking risk. And remember, when a leader takes risk, the entire company can be at stake. It is the last man standing, which is very, very tough. And you have to be the last to eat and last to leave the sinking ship, if at all the ship is sinking.
So it's about being tough. It is about being fearless. And it is about owning up your mistakes, because you will make mistakes. Got it. I think, sir, that really explains leadership, the hard parts, easy part, who is a leader, who is not a leader. ये सारी चीज़ें और आपकी जर्नी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से this really explains that well. अब एक सिनेरियो लेते हैं. एक सिंपल सिनेरियो है. मानिए एक एनालिस्ट नहीं, एक एग्जीक्यूटिव लेवल इंसान है जो काम कर रहा है. 4 साल हुए होंगे उनको काम करते हुए. आज लगभग एक नॉलेज इंडस्ट्री में काम करते हैं कहीं पे. 50,000 रुपये के आसपास उनका मंथली पे स्केल है. ये इंसान या कोई एक नई कंपनी में बहुत अच्छा पढ़ के एक इंटर्नशिप ज्वाइन किया है, या किसी ने कंपनी स्विच की है कोई, और वो स्विच करके वहाँ पे एक थोड़ा सा सीनियर पोजीशन उन्होंने लिया. ये लोग जो अपने करियर के फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब अगर मानते हैं 40 साल का करियर है तो शायद पहले 10 सालों में है. ये लोग क्या कर सकते हैं अपने ऑफिस में, अपने अराउंड, क्या छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं जिससे पहला उनकी लीडरशिप की खुद की ट्रेनिंग वो बेहतर हो सके. सेकंड, वो लोगों के नजर में आ सके. शायद ये गलत मोटिव होगा कुछ इनिशिएटिव लेने का, बट कई बार शायद ये नहीं, बहुत सही बोल रहे हो आप. कई बार ये शायद एक रास्ता है टू अ सीनियर पोजीशन. और तीसरा, वो अपने आप को ट्रेन भी, शायद वो पहले का ही हिस्सा है कि वो अपने आप को उस हिसाब से तैयार भी करता चला जाए कि मैं जब मुझे कोई जवाबदारी बड़ी मिले तो मैं उस पर निभा पाऊँ. This is my favorite part, because this is really truly helping somebody in the, say he's in the 7 साल हुए हैं काम करते हैं, पहले 10 साल में है. पहली चीज तो ये है कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, नंबर 1, प्लीज वर्क एज इफ इट इज योर ओन कंपनी. कि जो आपका सीईओ जब आपको देखे तो उसको लगे कि यार इस आदमी की ओनरशिप कमाल है. और वो कैसे, जो काम दिया गया है उसको टाइम पे करो और काम मांगो. आप अगर ग्रो करना चाहते हो, आप ही के हाथ में है. अगर आप पहले 7-10 साल में हो, आजकल अब आप स्मार्टनेस में बोलते हैं कि यार जो काम मिला है वो अच्छे से करेंगे, हम अब निकल जाएंगे. अब तनख्वाह चाहिए 2 लाख की, काम करोगे आप 50,000 का. तो आपको क्या करना है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपये है, ट्रेड 50 पे हो रहा है, खरीद लो. शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू 150 पे है, ठीक है, ट्रेड हो रहा है 250 पे, बेच दो. इंट्रिंसिक वैल्यू, आप तो फाइनेंस के प्रोफेशनल हो, मैं तो इतना फाइनेंस नहीं जानता हूं, थोड़ा बहुत जो जानता हूं क्योंकि मैं वेल्थ मैनेजमेंट में रहा. अब आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? आपका काम है एक्स, आपको सैलरी मिलती है एक्स की, आप एक्स प्लस वाई करना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी 50,000 से 1 लाख हो जाएगी, बिकॉज वो आपको छोड़ने ही नहीं देना चाहेंगे. उस कंपनी को अपनी कंपनी समझो, ऑटोमेटिकली आप ज्यादा काम करना शुरू कर दोगे. बिकॉज अगर आपकी अपनी कंपनी होती तो आप ज्यादा करते हैं. करते ही, कोई उपाय नहीं. तो ज्यादा काम करने का क्या तरीका है? माइंडसेट है. फिर माइंडसेट पे मैं आ गया. गेम ही माइंडसेट की है. वो तो पूरी लीडरशिप, पूरा गेम में. तो आप सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? उसको अपनी जिस कंपनी में भी काम करो, जब तक काम करो, थिंक लाइक इट इज योर ओन कंपनी. और जितना काम मिला है उससे ज्यादा काम करो, और 6 महीने के अंदर रिजल्ट दिखने लगता है. उसके बाद आप अपने सुपरवाइजर के पास जाओ. अब मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड बोल रहा हूं, किताब लिखेंगे इसके ऊपर हम. स्टेप बाय स्टेप गाइड बोल रहा हूं मैं आपको. बोलो सर, आई नीड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तब तक 6 महीने में उसने देख लिया होगा कि आप अश्विंदर हो, आप अनुराग का भी काम कर रहे हो, राधिका का भी काम कर रहे हो, फेरी का भी काम कर रहे हो. नाउ इट इज टाइम कि आप उन तीनों के बॉस बन जाओ. और जैसे आपने मुझे समझाया, बहुत अच्छा बोला. अब आप खुद नहीं करोगे, आप इस काम में बहुत अच्छे हो, आप इन तीनों को अपने जैसा बना दो और अपने से बेटर बना दो, ताकि अब इन 4 लोगों की जो प्रोडक्टिविटी x थी, आपको बॉस बनाने से 3x हो जाए और आपकी सैलरी हम 1.5x कर देते हैं. गेम ओवर.
कंपनी को अपना समझो, ज्यादा काम करो, 6 महीने ज्यादा काम करो, गो एंड आस्क फॉर अ प्रमोशन, गो एंड आस्क फॉर अ बिगर रोल, डोंट आस्क फॉर अ प्रमोशन। रोल के पीछे पैसा आता है, रोल के पीछे टाइटल आता है। लोग क्या करते हैं, टाइटल मांगते हैं। डोंट आस्क फॉर अ टाइटल, डोंट आस्क फॉर मनी, आस्क फॉर अ रोल। द मोमेंट योर रोल इज बिगर, moment you are not a relationship manager, you become a branch manager, automatically टाइटल आ गया, ऑटोमेटिकली ब्रांच मैनेजर की सैलरी आ गई। मोमेंट आप ब्रांच मैनेजर से रीजनल मैनेजर बन गए, टाइटल आ गया, सैलरी आ गई। और मांगो 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 मांगो, बट उसके लिए काम करा होना चाहिए। अब दूसरा आदमी बोलेगा अरे अश्विंदर ने मांगा तो उसको मिल गया, मैं भी मांगता हूं। वो जाएगा बोलेगा भाई ऐसे है, तू बाहर निकल, तेरी जरूरत ही नहीं है, तू इरिटेट करने आ गया मेरे को, तू मुझसे मांग रहा है, तेरे को तो जो काम दिया तो वो भी पूरा नहीं कर रहा है। कभी तेरा मामा बीमार, कभी मासी की शादी, नानी 3 बार मर गई, दादी 4 बार ही 1 साल में जन्मदिन आ गया दादी का, और तू बोल रहा है मुझे प्रमोशन दे दो। जस्ट बिकॉज तूने एक ही चीज देखी कि दिस पर्सन वेंट एंड आस्क्ड फॉर अ हायर जॉब रोल, बिकॉज ही हैड वर्कड फॉर इट। नंबर 3, एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है, हंगर होनी चाहिए। हम जब हायर करते हैं आदमी को, हम उसकी हंगर देखते हैं, जरूरत देखते हैं। जब उसमें हंगर होगी तो वो काम करेगा। वी डोंट नीड स्लॉपी पीपल। तो आपके अंदर अगर हंगर है, एम्बिशन है, और वो कंट्रोल्ड है, और आपको पता है सही समय पर आपको वो हंगर डिमॉन्स्ट्रेट करनी है, मैच्योरिटी भी होनी चाहिए। हंगर होगी तो आप ग्रो करोगे। अगर आप पहले 7-8 साल में हो, हंगर दिखाओ कि भाई आप दिखाओ काम कर रहे हो और आप फ्रस्ट्रेटेड हो कि आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है। सच बोलो, नई जॉब में जाओ तो बोलो कि मेरे को ग्रोथ चाहिए, मेरे को आई थिंक आई कैन डिलीवर फार मोर, आई थिंक आई कैन ऐड मोर वैल्यू, मुझे वहां नहीं मिल रही है, ये अपॉर्चुनिटी आई है, मैं इसलिए आया हूं। ताकि या तो वो आपको रोक लेंगे या वहां आपको अच्छा कुछ मिल जाएगा। बट रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। अगर आप हर 2 महीने में चेंज करोगे तो आपको एक लेवल पे तो ग्रोथ मिलेगी, बट फिर आप जाके प्लेटो पे आ जाओगे। बिकॉज वी ऑल राइज टू द लेवल ऑफ आवर इनकॉम्पिटेंस, वहां पर अपस्किलिंग आती है। अब हम वो वाली बातें करेंगे जो तेरी फेवरेट बातें हैं। पहले मैंने अपनी फेवरेट बातें की, अब तेरी फेवरेट बातें करूंगा मैं, बिकॉज दिस जनरेशन वॉन्ट्स एक्शनेबल थिंग्स विच आर टेंजिबल। वहां अपस्किलिंग आती है। व्हेन यू आर a branch manager, you have to think like a regional manager, so that when you become a regional manager, you are not again operating like a branch manager. भाई तुम रीजनल मैनेजर हो गए, तुम्हें 10 ब्रांच मैनेजर्स को हैंडल करना है, तुम अभी भी ब्रांच मैनेजर बन के खुद काम कर रहे हो, तो तुम उन 10 लोगों को कैसे मैनेज करोगे? वहां अपस्किलिंग आएगी कि भाई मेरे को अपस्किल करना है, मैं टेक्नोलॉजी में हूं, एआई आ गया है, मशीन लर्निंग आ गई है, कोर्सेज करने पड़ेंगे, सीखते रहना पड़ेगा, सीवी को अपडेट करते रहना पड़ेगा। और वहां पर आता है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड अगर आपका नहीं है, आप अंडा हो। आपको सिर्फ आपकी कंपनी में लोग जानते हैं। आपको लिंक्डइन पे होना चाहिए, आपको फेसबुक पे होना चाहिए, आपको ट्विटर पे होना चाहिए, कहीं ना कहीं जाकर आपको अपना झंडा गाड़ना चाहिए, ताकि लोगों को लगे अरे यार ये टेक्नोलॉजी के अंदर है, कितना थॉट लीडरशिप दिखा रहा है, इस बंदे को ढूंढो। बिकॉज जब आप कंपनी में हो तो आप उसी कंपनी में हो। सो पर्सनल ब्रांड बनाओगे तो पर्सनल ब्रांड नहीं बनेगा। जब वैल्यू ऐड करोगे जाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अपने आप पर्सनल ब्रांड बनेगा। मैंने किताब इसलिए थोड़ी लिखी थी क्योंकि मुझे पर्सनल ब्रांड बनाना है। मैंने तो किताब लिखी थी क्योंकि रियल एस्टेट में कोई किताब नहीं थी। दैट इज द प्रॉब्लम आई वाज सॉल्विंग। पहली किताब लिखी मैंने, तेरा फोन आया, मैंने बोला मेरी पहली किताब बहुत बेकार है, चल इंप्रूव करते हैं। हमने इंप्रूव की। फिर हमने बात की कि यार कमर्शियल में भी कुछ नहीं है, कमर्शियल भी लिखते हैं। उसके कारण अगर आपके पर्सनल ब्रांड को हेल्प हो गया, वेल एंड गुड। बट अगर मैंने पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए किताब लिखी होती, जैसे 99.9% लिखते हैं, 1 मिलियन बुक्स आर देयर ऑन Amazon, कौन जानता है उन ऑथर्स को? There are authors who have been failure in corporate life and they are telling how to be successful, 20 mantras to become successful in corporate life. वाह! दो चीजें और चाहिए हंगर के लिए, एनर्जी और पैशन। वो दिखना चाहिए आपके बॉस को
कि यार इसमें एनर्जी है। आपकी टीम में जब कोई आता है उसमें एनर्जी होती है, आप उससे इतने प्रभावित हो जाते हो, आप बोलते हैं यार इसको मिलके ना बड़ा खुशी होती है। ये बंदा ना मरे हुए में भी जान डाल देता है, और कुछ नहीं है, ही हैज अ गुड वाइब, he is positive, he wants ZebraLearn to do well because he is thinking about the company. देखो, you have to think about the company, you cannot think about yourself. That is true. That is why I started with that. Because when you think about the company, you will do more, you will learn more, you will earn more. The mantra is do more than what is required, learn more, upskill. Moment you upskill, you will get promoted, you will earn more. So the mantra is do more, learn more, earn more. That is our patented topic for our next book. On leadership. Why doesn't India have books on leadership? Because there is no actionable book like ZebraLearn which can write something on leadership. You took that initiative of writing it for real estate. You took that initiative for writing it for HR. You took that initiative on HR, created a bundle. People are reading it. भाई था ही नहीं, इसको leadership बोलते हैं ना. Leadership is about doing new. The same old process. तो अगर आप उस 7-8 साल के ब्रैकेट में हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, नए तरीके ढूंढने के, काम करने के, और जाकर मांगो जो आपको लगता है आपका हक है, अंदर फ्रस्ट्रेटेड मत रहो. Do more, learn more, earn more is the mantra for anybody in 7 to 8 years of bracket and have an ambition. Please have the hunger to become a CXO. अब आपके हंगर ही नहीं है, that means आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है. कॉन्फिडेंस किस लिए नहीं है? या आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो, या आप सीख नहीं पा रहे हो, या कैपेबिलिटी इशू है. सपोज आप 7-8 साल में हो, आपका बॉस के साथ आपकी नहीं बनती, आपको लग रहा है आप सीख नहीं रहे हो, जाके बोलो सर वो अच्छा आदमी है, यू डोंट हैव टू बी क्रिटिकल, मेरे को आप दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दो, मैं यहाँ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, I am not good in sales, please put me in service. I am not good in service, please put me in operations. I am not good in operations, please put me in risk. I am not good in risk, please put me in compliance. I am not good in compliance, please put me in data analytics. बोलो, बात तो करो. Self awareness, it all comes back. भाई आपको रिस्क में डाल दिया, आप टेबल पे बैठे हो, आप अश्विंदर हो, आप लोगों को मिलना चाहते हो, आप बोल रहे हो मुझे कस्टमर एक्वायर करने हैं. यहां पर आपको पॉलिसी बनाने में बिठा दिया कि रिस्क की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, आदमी 30 साल का होना चाहिए, मैरिड होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, माँ बाप साथ में रहने चाहिए, स्कोरिंग इतनी आएगी, 80% LTV देंगे, वेरी गुड है, ये वेरी बैड है, सिबिल इतना होना चाहिए. वो कह रहा है मैं क्या कर रहा हूं, मैं पागल हो गया हूं. उधर आपने सेल्स में एक आदमी को डाल दिया है, ठीक है, वो सारा दिन स्कोरिंग मॉडल बना रहा है, AI के अंदर देख रहा है कि भैया ये देखो यार डीप फेक आ गया. अब उसको आप बोल रहे हो क्रेडिट कार्ड बेच. सो ICICI बैंक में एक बहुत बड़ी चीज थी. ICICI बैंक का HR बहुत जबरदस्त माना जाता था. मिस्टर राम कुमार थे, ही वाज वेरी वेरी वेल रिस्पेक्टेड. तो उन्होंने एक चीज स्टार्ट की थी, राइट जॉब फॉर द राइट पर्सन. So it is very important for self awareness for you to understand. अगर आपको वो जॉब ऐसा मिल गया है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, अब आपको मिल गया, आप कर लो, रेगुलर कॉन्वर्सेशंस करो HR के साथ, बॉस के साथ, बोलो सर आई थिंक आई वुड वांट टू डू सेल्स. व्हाई सर? आई वांट टू बी वेल राउंडेड, बिकॉज फाइनली सर आई वांट टू बिकम अ CXO एंड आई ऑल्सो वांट एक्सपीरियंस इन रिस्क, क्रेडिट, ऑपरेशंस, सेल्स, कंप्लायंस. देखो चमत्कार. और चमत्कार कोई नमस्कार होता है फिर? सिटी बैंक वाले लोग क्यों अच्छा करते थे? 2 साल सेल्स, 2 साल क्रेडिट, 2 साल ब्रांच मैनेजर, 2 साल रिस्क, 2 साल इंडिया, 2 साल पाकिस्तान, 2 साल श्रीलंका. आदमी तैयार है. IAS को क्या करते हैं? टैस, टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. पहले डाला रेलवेज में, फिर डाला होटल में, फिर डाला केमिकल में, फिर डाला कंज्यूमर में. आदमी तैयार. द बेस्ट वॉज इन टैस. टैस के अंदर 10 कंपनियों में काम किया, 20 साल, 2 साल, यू आर रेडी, यू आर द CEO ऑफ अ कंपनी. McKinsey, why do people from McKinsey become a CEO? Because उन्होंने कभी कंसल्टिंग की, कभी कैपिटल गुड्स की कंसल्टिंग की, कभी फार्मा की कंसल्टिंग की, कभी फाइनेंशियल सर्विसेज की, कभी सर्विसेज की, हॉस्पिटैलिटी की. उसके बाद उन्होंने बोला यार इसको CEO ले लो यार. दुनिया देखी थी, दुनिया देख ली उसने. Ultimately, you need broad-based experience. It is all about diversifying your risk. अब देखो 2 चीजें हैं.
डाइवर्सिफाइंग रिस्क के अंदर भी एक रिस्क है। जब आप 10 शेयर खरीद लेते हो तो 3 शेयर अच्छा करते हैं, 3 सीधे रहते हैं, 3 नीचे चले जाते हैं, रिटर्न मिलता है आपको 10 से 12%, 15% का। वो होता है म्यूचुअल फंड। या फिर आप राकेश झुंझुनवाला बन जाओ और आप स्पेशलिस्ट बन जाओ, बोलो अब मैं रिस्क में घुस गया हूं, आई विल बी द बेस्ट रिस्क पर्सन, मैं सिर्फ टाइटन खरीद रहा हूं, पूरा 100 करोड़ टाइटन में डाल दिया, टाइटन ऊपर चला गया, तुम्हारा 100 करोड़ 1000 करोड़ बन गया, तुमने डाइवर्सिफाई नहीं किया। तो अगर आप रिस्क में चले गए तो बोलो सर अभी मैं ऑटो का रिस्क कर रहा हूं, अब मैं क्रेडिट कार्ड्स का रिस्क करना चाहता हूं, अब मैंने क्रेडिट कार्ड का रिस्क कर लिया, अब मैं मॉर्गेज का रिस्क करना चाहता हूं, अब मैंने मॉर्गेज का रिस्क कर लिया, सर अब मैं क्रेडिट करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे हो रही है, कैन आई चेक इट, उसके बाद यू आर द सीआरओ। यही फाइनेंस में होता है। सर मैंने अकाउंटिंग कर लिया, अब मैं बीपीएनए करना चाहता हूं, बिजनेस प्लानिंग एंड एनालिसिस करना चाहता हूं, बिजनेस प्लानिंग एंड एनालिसिस के बाद सर अब मैं टैक्स करना चाहता हूं, टैक्स के बाद मैं ऑडिट करना चाहता हूं, सीएफओ। तो either you are going vertical or you are going horizontal. I went horizontal. मैंने तो horizontal का next level कर लिया। बैंकिंग में ऑटो लोन किया, क्रेडिट कार्ड किया, मॉर्गेज किया, वेल्थ मैनेजमेंट की, ब्रांच बैंकिंग की, सब में लीडरशिप रोल किए। उसके बाद जेएलएल में घर बेचे, फिर एनर रॉक किया, फिर डेवलपर के पास गया, फिर मैंने मॉर्गेज किया, अल्टीमेटली रियल एस्टेट में सेटल हुआ, हॉरिजॉन्टल रहा। तो ये जो बोलते हैं जी जर्नलिस्ट कुछ नहीं होते, ये सब कुछ नहीं होता, भैया जर्नलिस्ट सब कुछ होते हैं। जब जुकाम लगता है ना तो आप एक जर्नलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हो और जुकाम ज्यादा लगता है, कैंसर कम होता है। अब जुकाम क्या है? हाई वॉल्यूम गेम। कैंसर क्या है? लो वॉल्यूम, हाई वैल्यू। जुकाम इज हाई वॉल्यूम। या तो टॉफी बेचो तो करोड़ों में बेचो, नहीं तो चॉकलेट बेचो, और चॉकलेट फिर बेचो तो फिर वो 1000 रुपए की बेचो। ज़ेब्रा लर्न 1500 की बुक है, बाकी बुक्स 150 रुपए की है, आप डिसाइड कर लो आपने क्या करना है। सो वो जो 8-10 साल है वो आपके क्रिटिकल है, बिकॉज वही डिसाइड करेंगे आप आगे जाके लीडर बनोगे कि नहीं बनोगे। तो पहले तो सोच लो कि तुम जर्नलिस्ट बनना चाहते हो कि नहीं, तुम सीएफओ बनना चाहते हो, सीआरओ बनना चाहते हो, चीफ रिस्क ऑफिसर बनना चाहते हो, या तुम सीईओ बनना चाहते हो। सीईओ की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी, उसकी थोड़ी ज्यादा होगी। फाइनेंस के अंदर हर डिपार्टमेंट में काम कर लो, रिस्क के अंदर हर डिपार्टमेंट में काम कर लो, सेल्स के अंदर क्रेडिट कार्ड भी बेच लो, होम लोन भी बेच लो, खाते भी खोल लो, पर्सनल लोन भी कर लो। आप कंज्यूमर बैंकिंग बन गए, आपको कंज्यूमर बैंकिंग हेड बना देंगे वो। बट करते रहो, लगे रहो। एक ही फिलॉसफी है, एमबीए सबसे बड़ी एमबीए डिग्री लाइफ की एक ही है, अगर आपको समझ नहीं आए, उसका नाम है लगे रहो। मेरे को किसी ने पूछा सर आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है सुंदर जी, मैंने कहा मेरी स्पेशलाइजेशन ना फाइनेंस है, ना मार्केटिंग है, ना एचआर है, मेरी स्पेशलाइजेशन है अश्विंदर आर सिंह, एमबीए कॉमा लगे रहो। जो मिला है वो अच्छे से करो। हाँ, पहले तो कुछ ना कुछ करते रहो, और उसके बाद करते रहो, और उसके बाद डिसाइड कर लो कि यही करना है, इसमें डेप्थ में जाना है कि और चीजें करनी है। सी इट, माय गेम इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ सम। मास्टर ऑफ नन कुछ नहीं होता है, ये पुराने जो बना गए जस्ट बिकॉज किसी ने बना दिया जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन तो आप भी सोचने लग गए अरे यार जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। क्यों भाई? आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड आई एम मास्टर ऑफ सम। Who are you to tell me I'm not a master of none just because I'm doing multiple things? that is true. I am a chef who can cook a Chinese, who can cook an Italian, who can cook a Indian, who can cook a Gujarati, who can cook a Jain. I can make food out of a raw banana. I can make mutton. What is your problem? I am a master chef. I love Jain food, I love Punjabi food. What's your problem? If my taste buds don't have a problem. So ये जो बनी हुई चीजें हैं उनको शैटर करना बहुत जरूरी है। अरे पब्लिशर को फंडिंग मिल गई, लो मिल गई। सो ये 7, 8, 9, 10 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। डू मोर, लर्न मोर, अर्न मोर। डू मोर, लर्न मोर, अर्न मोर। जितना काम मिला है उससे ज्यादा करो, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जो आपकी कंपनी है उसको अपनी कंपनी समझो। उसके बाद सीखते रहो, अपस्किल करो। एआई, सुपर एआई, सुपर एआई, सुपर एआई, ब्लैक चेन एंड ब्लॉकचेन, एनएफटी, वीआर, एआर, सब सीखते रहो, समझते रहो, पता करते रहो। अरे यार वकील भी तो सारा दिन पढ़ता रहता है, डॉक्टर भी तो सारा दिन पढ़ता रहता है, उसको अपस्किल नहीं करेगा तो नहीं चलेगा। एंड देन अर्न मोर।
That's the outcome. Of course. Don't be apologetic when it comes to making money. Don't be apologetic when it comes to growth. You have to be apologetic if you are arrogant. जब आप डू मोर कर रहे हो, एरोगेंस का टाइम ही नहीं है. हाँ, आप असेंट्रिक हो सकते हो बिकॉज आप ऑथेंटिक हो. असेंट्रिक क्या होता है मुझे बताओ. असेंट्रिक वो होता है जो बाकियों की तरह, लोगों की तरह नहीं होता है, उसको लोग असेंट्रिक बोलते हैं. असेंट्रिक थोड़ा आसान सा वर्ड है. ज्यादा अग्रेसिव होना है, देसी लैंग्वेज में बोलना है ये आदमी पागल है. पागल क्यों है? क्योंकि वो बाकियों की तरह नहीं है. एमएफ हुसैन पागल था क्योंकि नंगे पैर चलता था. पेंटिंग तो उसी की बिकती है 10 करोड़ की. That is why he was a leader in his trade. Got it. So do more, learn more, earn more, ask for things, don't assume things, be true to your word. कभी भी जो चीज बोलो वो सिग्नेचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए लीडर के लिए. And don't assume my boss does not like me. Arey, he might be liking you. He might be an introvert. She might be an introvert. He doesn't know how to express. Most of the relationship problems are based on assumption. अब मैं लाइफ स्किल पे चला जाऊंगा तो मैं वापस आ रहा हूं. But don't assume. Go and talk. Ask. I always say one thing to people if they want to grow in the category when they are in 8 to 10 years of experience. When in doubt, shout. Oh, good one. When in doubt, shout. Please don't assume. And if you want to be a leader, remember speed of the train is speed of the engine. You cannot hire talented people and then slow them down. So when you're asking for a larger role, remember you will have to be accountable for people who might be better than you. And it is good if you get people who are better than you because that will push you to become even better. That is where learn more will come. So upskilling तो करते रहना पड़ेगा. You have to sharpen the saw. You have to sharpen the saw. You have to use new tools. You can edit a book with an AI tool in 2 minutes. You are using some other outdated tool and then your productivity is going down. That is your problem. That is why upskilling is so important. So I think आज हमने बात की, बहुत डिटेल में बात की, and today was little different from other episodes. We spoke about something that affects everything execution, something that affects or wraps every other episode that we talk about at the execution show. Today we spoke what is or who is a good leader. क्या होता है एक अच्छे लीडर में, और बहुत सारे मल्टीफेसेटेड चीज़ें होती है जो हमने एक एक करके लिस्ट डाउन की. फिर हमने वो लीडर बनने का तरीका क्या है, वो लीडर बनने के तौर तरीके, अपने आसपास छोटे छोटे चेंजेस कोई इंसान क्या कर सकता है, हमने वो चीज़ें समझी. वो छोटे छोटे चेंजेस अगर आप स्टार्ट करते हैं वो आपको आज के टाइम में बहुत टॉल आस्क लगता है, बट शायद आप 1 साल विश्वास रख के अगर काम करें, हैविंग फेथ, दैट फंडामेंटल फॉर अ लीडर. अगर आप वो बिलीफ और फेथ के साथ काम करें, प्रॉब्ली विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स, प्रॉब्ली मच सूनर. हमने वी ऑल्सो टच्ड अपॉन कि लीडर के साथ प्रॉब्लम्स क्या है. दे गेट टू ईट लास्ट, दे गेट टू जो सारी प्रॉब्लम्स है लास्ट में उनकी ही प्रॉब्लम्स है. ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की. लास्ट में हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे लीडरशिप एक बहुत कल्चर से ड्रिवन चीज़ है, एक बहुत आसपास आपके लोगों से ड्रिवन चीज़ है. सो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, I am sure there is a rush of adrenaline in a lot of readers that have read this or that have heard this actually. This should act as something that pushes you to start taking leadership more actively, not as something that will happen साथ में साथ पैरेलली आपके काम के साथ आप जिस पे काम करते रहेंगे. ये एक ऐसी चीज़ है जो आप कॉन्शियसली, जैसे कि आप फिटनेस को, जैसे हम फिटनेस के ऊपर काम करते हैं, वैसे लीडरशिप के ऊपर भी शायद हम, और या हम जरूर उस पर काम कर सकते हैं. तो अगर हम उस ध्यान से, इफ वी टेक दैट एंगल टू दिस एंड वर्क ऑन इट कॉन्शियसली, जैसे शायद हम जिम जाते हैं, उसके तरीके हजारों तो नहीं है, बट कई सारे, कई बार पढ़ना, कई बार सीखना, कई बार अपस्किल करना, कई बार अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशंस में डालना, कई बार ज़रूरत से ज़्यादा काम लेना, कई बार घर के छोटे काम लेना, कई बार एनी सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी.
जहां पे आपको जितना करने की जरूरत थी उससे आगे बढ़ के आपने करने का या सोचने का सोचा. दैट इन इट सेल्फ इज वॉट लीडरशिप इज. अगर आप इस चीज़ों के ऊपर वर्क करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है इस सेशन के बाद आपके लिए. एंड फॉर दिस सो वी आर वेरी 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 ग्रेटफुल फॉर यू for sharing your all your experience, all your wisdom on and setting so many people up, or all the readers on that, or all the listeners on that path to leadership. जो टोटल इम्पैक्ट हम जिंदगी में क्रिएट करते हैं उसको क्यूमुलेटिवली बढ़ाया जा सके. और लीडरशिप इज द ओनली टूल आई बिलीव टू डू दैट, बिकॉज उसके अलावा आपका ओवरऑल इम्पैक्ट आपके बाहर कभी निकलेगा नहीं. So with this, I would like to leave the stage to you, sir. Any concluding remarks? No, thank you, Anurag. We finally got to meet each other. Thank you for publishing both my books, and thank you for trusting us, and many congratulations on your Shark Tank appearance. Thank you. And winning an investment round there. I thoroughly enjoyed today's topic because there are a lot of things that came out, and I myself started thinking while I was answering. I think this is a very good episode where if the listeners really go through it, I'm sure there is something for everybody. Somebody who's already, with 25 years of experience, or somebody who's there with 2-3 years of experience. You're taking out time to create such content which will add value, and this is what is about, giving it back. So thank you so much for inviting me, and I really hope that people find our discussion useful. Thank you, everyone. Please share your comments. Please do write to us in comments, and we would love to go through it. We would run it by sir, and it would be absolutely amazing to hear from you what we can do better, or what we have done good. All the good, bad, and better. Everything we would love to hear. Thank you so much, sir. Thank you for your time, everyone.